Okay, so once again, good morning, everyone. Good morning, sir. Yeah, good Good morning. morning, sir. Good morning. Morning. So, anybody have any doubt? No, sir. Okay, so now today we are going to learn about the string and array. Okay, so today we will cover the two things. One, we will start with the Java strings. Okay, in that we will see what is Java string actually, and then after that we'll see how we can create a string in the Java. That is actually a string is not a string is not a data type. Okay, so actually what is a string, that we'll see. Okay, then there several methods are there that can be used with a string to manipulate the string. That method we will see how we can manipulate the strings. Then we'll see the string concatenation, how we can join two or more strings together. Okay, so this is about the Java string and what we are going to learn today in a Java string. Okay, and second is we are going to learn about array. Okay, Java array. So array is similar. Array is simply like a variable only, but a variable, in that variable we can store a single value. But array provides a facility where we can store the multiple values of same data type in one variable itself. So ये array के बारे में हम लोग देखेंगे, array का थोड़ा introduction देखेंगे, और then we'll see how we can create an array. Okay, is it okay? Yes, sir. Okay, so now we will start Yes, with a string. So if you remember in the previous class, we have discussed how to insert a value from the user. और उसमें हम लोगों ने देखा था कि यूजर से जब वैल्यू लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जावा टेक्स एवरी वैल्यू एज ए स्ट्रिंग. सो सपोज आई हैव रिटन a string स्ट्रिंग s इक्वल्स टू या स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, और मैंने एक नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल अनमोल एक नाम दिया है. ओके, तो यहाँ पे सेमीकोलन लिखा है. इट मीन्स यहाँ पे s क्या है? S is a variable of string type. S is a variable of string type, and this unmol is a value that will be stored in a S variable, and this type is belongs to string. So what is the string is? A string is used for storing the text. Whenever I need to store the text, I need to use a string variable. Okay, or string type variable. So what is a string is? A string को हम दूसरे वे में समझ सकते हैं. String is a collection of characters. String is a collection of characters enclosed in a double quote. So always this value should be enclosed in a double quote. Okay, so a string str, यहाँ पे या हमने यहाँ पे लिखा है s, और यहाँ देखिए हमने लिखा है string str is equals to hello one. So what is this? What is the similarity between s and str? Both are the object of string. Both are the object of the string. So here, why the concept object is coming? Because this string is not a data type. This string is a class. ये string क्या है? एक class है. जावा में डेटा टाइप में कैट डेटा टाइप होता है, CHAR. This is a data type. Cat data type is there. There is a no data type called string. String नाम का कोई data type नहीं है. String is a class in Java. Is it okay? Hello? Yes. Okay. So wherever I need to create a string variable, or if I have to store a collection of characters or a collection of word, I need to create a string type variable. So एक तो तरीका ये है कि string str is equals to hello one हमने लिखा है. अब ये मेमोरी में जाकर कैसे स्टोर होता है, ध्यान से देखिए. इन अ मेमोरी इट विल स्टोर लाइक ए ब्लॉक. ओके, सो इन अ मेमोरी str नाम का एक वेरिएबल बनेगा, और str नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हाउ मेनी कैरेक्टर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6. सो 6 मेमोरी एलोकेशन विल बी एलोकेटेड. ओके, और सबका इंडेक्सिंग होगा. सपोज this is index always start with 0. So 0 1 2 3 4 and 5. Is it okay? So this is the index, and on index का सिंपली का मतलब है कि इंडेक्स एक लोकेशन. सो हर इंडेक्स पे एक एक वैल्यू स्टोर होगा. ओके, मे बी सपोज दिस मेमोरी एड्रेस मान लो यहाँ पे. सो सपोज this
H is stored at a memory location 5001. This is stored at 5002. This is stored at 5003. This is stored at 5004. This is stored at 5005. And this is stored at 5006. So what is this 5001? So this may be the memory address. इस मेमोरी एड्रेस में दैट इज 5001 से लेकर 5006 तक एक मेमोरी लोकेटेड हो गया STR पे. And on this memory location, every memory location have the index. At the index 0, H is stored. At the index 1, 1 is stored. At index 2, L stored है. Index 3 पे L stored है. Index 4 पे O stored है. Index 5 पे 1 stored है. Are you getting the point? Yes, sir. Okay. So suppose I need to change the value of index 5 to 2. So simply हमें क्या निकला पड़ेगा, हमारा वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग क्या है str. इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है 5. ओके, सो इंडेक्स 5 पे हमें वैल्यू कुछ चेंज करना है या वैल्यू मुझे इस इंडेक्स की वैल्यू मुझे प्रिंट करना है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज, अच्छा चलो पहले वैल्यू चेंज करते हैं. सो मैंने लिखा है str5 इक्वल्स टू 2. इसका मतलब क्या है, दिस वैल्यू विल नाउ चेंज टू 2. ओके, अब मुझे प्रिंट करना है. सो प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर में हम क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिखे थे, सीधे वेरिएबल का नाम लिखते थे. नाउ आई हैव टू गिव द स्ट्रिंग वेरिएबल, देन आई हैव टू गिव द इंडेक्स, किस इंडेक्स की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है. सपोज आई हैव टू प्रिंट द वैल्यू एट इंडेक्स 1, so I will give 1. Are you getting the point? So what the output I will get? If I write str1, output क्या आएगा? We will get E. We'll get E. We'll get E because at index 1 E is stored. So this value will get as an output. I hope it is clear. Hello. Yes, sir. Okay. Now let's Yes, see. sir. And what doubt? हाँ बोलिए. Yes, sir. Here we have allotted the index numbers to every character in the string. Now listen, we are not assigning. Listen, We are not giving the value. Automatically the Java will assign the index to each character. So, sir, how would we know that which character is stored in which index number? अच्छा. Now listen. So suppose your name is Yash. Okay. And I have stored this in str2. str2 में ये वैल्यू स्टोर कर दिया है यश. So automatically क्या होगा, this will stored in a memory. Okay, YASH ये मेमोरी में स्टोर होगा. And automatically जो फर्स्ट वैल्यू होगा that will be index always start with a 0. Okay, index always start with a 0. So automatically the index will be assigned character by character. So this is index 0, index 1, index 2, index 3. Are you getting the point? Yes, sir. Okay, so suppose I need to, मुझे पता करना है कि what is the last index. Okay, so if you know the length of the string, then you can find the index will be 1 less than the length of the string. अगर length of the string is 6, the index will be 5. Okay, if the length is 6, then the index will be 5. If that means index is always less than 1, index will always 1 less than your string length. जैसे hello में ये hello 1 जो लिखा था उसमें what is the length 1 2 3 4 5 6. The length of this string is str is 6. So what is the index? Index is up to 5 only. That is, it will start from 0 to 5. Is it okay? Yes, sir. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. Now let's see here. There are different way of creating the string. As I told you, string is a class. Okay, so there are two ways to create a string. One is string literal, and one is by using the new keyword. स्ट्रिंग लिटरल का मतलब ये होता है कि जैसे हम वेरिएबल बनाते थे तो पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू.
ओके, सो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की जगह पे, क्योंकि डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, लेकिन ये लिटरल वे में बना रहे हैं, तो वहां पे डेटा टाइप की जगह पे हम देंगे स्ट्रिंग, दैट इज क्लास का नाम। देन वेरिएबल, वेरिएबल मान लो हमने str1 दे दिया, या str1 str2 जो भी दे दो, या s दे दो, कुछ भी दे दो। देन वैल्यू, क्योंकि लिटरल है, लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, सो मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया APPLE। ओके, सो एक ये तरीका है आपको बनाने का। दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड। जब न्यू यूज करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक तो तरीका ये है जो पहला वाला, कि स्ट्रिंग टाइप देंगे, गिव द स्ट्रिंग टाइप, देन गिव द वेरिएबल नेम इक्वल्स टू द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिसका हमने एग्जांपल दे दिया। दूसरा तरीका ये है, या आप देखो ये दोनों मेथड, ये दोनों एग्जांपल देखिए। स्ट्रिंग str1 इज टू एबीसी, स्ट्रिंग str2 इज टू एबीसी। मैं इस डायग्राम को भी समझाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। व्हाट इज सेकंड मेथड इज यूजिंग द न्यू कीवर्ड। यूजिंग न्यू कीवर्ड का मतलब क्या है, हियर व्हाट आई नीड टू डू इज स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल s नाम का मुझे वेरिएबल बनाना है, इक्वल्स टू न्यू, मुझे न्यू लिखना होगा, न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर में जो भी हमें वैल्यू देना होगा दैट आई हैव टू गिव हियर। ओके, सो इसका मतलब क्या है, हियर न्यू इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज दिस s, दिस इज ए string, this is a string type object, this is string type object, are you getting the point? Yes, sir. और जो यहाँ पे वैल्यू देंगे, Yes. अभी हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, सो दिस वैल्यू विल बी असाइन टू दिस s, जो हम वैल्यू ये देंगे दैट वैल्यू विल बी असाइन टू s। ओके, सो सपोज यहाँ देखिए str3, str3 is equals to new string abc, so what will happen now, this abc will be, this abc will assign to this str, ये str को abc असाइन हो जाएगा। सो नाउ अब दोनों में क्या है, अब देखो ध्यान से, str1 की वैल्यू भी abc है, str2 की भी वैल्यू abc है, str3 की भी वैल्यू abc है। इट मींस ये सब एक ही को स्पेसिफाई करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दोनों लिटरल है, दैट इज दिस टू वैल्यूज आर स्टोर्ड एट वन, इसको बोलते हैं हीप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वे में, कि मेमोरी लोकेशन पे एक एबीसी स्टोर है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, और ये दोनों वेरिएबल str1 और str2 दोनों इसी को रेफरेंस करेगा। ओके, सो दिस बोथ विल रेफरेंस टू द सेम मेमोरी लोकेशन वेयर एबीसी विल बी एबीसी इज स्टोर्ड। बट इफ वी क्रिएट str3 इक्वल्स टू न्यू, जैसे ही आपने न्यू लगाया तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट ए न्यू हीप। ओके, इट विल क्रिएट ए न्यू लोकेशन वेयर एबीसी विल बी स्टोर्ड। ओके, ये एक अलग लोकेशन है और ये अलग लोकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एबीसी नाम का, सॉरी, यहाँ एक str3 नाम का एक अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसकी वैल्यू होगी एबीसी। यहाँ पे दोनों की एबीसी वैल्यू है, और दोनों स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल है, तो दोनों एक ही लोकेशन को रेफर करेंगे। और यहाँ पे देखिए, now because this str1 and str2 refers to same memory location and both have the same value, now str1 equals to str2 हम चेक करेंगे, this is called the equality operator, will get the answer true, will get answer true। but if I try to check str1 equals to str3, अब दोनों का एक लिटरल था और एक आपका ऑब्जेक्ट टाइप है, दोनों मिसमैच है, सो आई विल गेट फॉल्स। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो Yes. एक रीजन क्या है, रीजन ये है, वन इज क्रिएटेड थ्रू अ स्ट्रिंग लिटरल and second is created through the new keyword। when we create a string object using a string variable using the new keyword, then it is created as an object। okay, एक नया object बनेगा and that refers to the different memory location as compared to the literal case। I hope it is clear। आगे बढ़े। Yes. ओके, अब कुछ डाउट होगा तो आप पूछिएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अभी हम लोग आगे एरे पढ़ेंगे, लेकिन एरे से पहले एक चीज और देखिए, इसमें अगर हम बात करें, दिस आर द स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, स्ट्रिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है, और एक चीज और, सो नाउ सपोज आई हैव क्रिएटेड एन str1, str1 नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाया। नाउ आई हैव टू मॉडिफाई दिस वैल्यू।
ओके अगर इस वैल्यू को जो भी हम str1 में कोई वैल्यू रखे इसके ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, इफ आई हैव टू डू एनी मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन करना है, सो आई नीड, डायरेक्टली हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, व्हाट आई नीड सम मेथड्स, सो व्हाट आर द मेथड्स, मेथड का मतलब होता है फंक्शंस, okay, so Java provides some inbuilt functions, okay, Java provides some inbuilt function and that functions are this, that is method का मतलब होता है, यहाँ पे जो मैंने method लिखा है, method का मतलब होता है functions, functions, so Java के अंदर में methods को ही functions कहते हैं, is it okay? Yes. Okay, so first method is char add, okay, char add इसमें index देना पड़ता है, suppose हमने लिया है str1 की वैल्यू है सपोज एप्पल, ओके, str1 की वैल्यू है एप्पल, ओके, और मुझे एक पता करना है कि इस str में इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, सो व्हाट आई विल राइट str, ये प्रिंट के अंदर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर में str1 डॉट लगाएंगे, कोई भी मेथड को लगाने के लिए डॉट लगाना पड़ता है, कैर एट str मतलब इस str के पे हमने फंक्शन लगाया है कैर एट, कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स 2, ओके, और फिर हम इसको ऐसे बंद कर देंगे, फिर ऐसे इसको बंद कर देंगे, सो व्हाट द आउटपुट आई विल गेट, कोई बताएगा मुझे आउटपुट इसका क्या आएगा? अगर str की वैल्यू एप्पल है और मैंने लिखा है str1 डॉट कैर एट क्या बोलेगा कि कैर एट का मतलब होता है कि द गिवन इंडेक्स, जो भी मैंने इंडेक्स दिया है इस इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, सो इसमें देखिए ये इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, सो इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है p, सो आई विल गेट द आंसर p, आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. Okay, now compare 2, so if suppose there is a str2 is there, str2 is there and now I have to compare str1 को str2 के साथ कंपेयर करना है, so what will write, first I will write str1 dot compare to और str2 इसको ऐसे लिखना है, so first ये जितने भी फंक्शन लगा हुए हैं ये सब सारे फंक्शन str1 के ऊपर लगेगा, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लगाने के लिए पहले पहले आपके वेरिएबल का नाम, दैट इज स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल का नाम, फिर डॉट लगा के आप अपने फंक्शन को लगा सकते हो, इसमें से कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हो str1 के साथ, ठीक है, सो फर्स्ट इज अ कैर एट, दैट इज यूज्ड टू फाइंड द गिवन कैरेक्टर एट अ गिवन इंडेक्स, देन कंपेयर टू, दिस इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, next is the concat is used to join two strings, equals that is also used to compare two strings, and here also we'll get the answer in the form of true and false. Index of, अब मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ पता करना है, दैट इज एक हमने फॉर एग्जांपल एक लेटर दिया है, उस लेटर का मुझे इंडेक्स पता करना है कि वो एक्चुअली वो है कि नहीं है, तो वो हम पता कर सकते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग है जिसमें एक कैरेक्टर हमने जो सर्च करना है वो 3 जगह पे है, तो मुझे पता करना है लास्ट इंडेक्स उसका कौन है, जो लास्ट ऑकरेंस है उसका इंडेक्स क्या है, दैट इज वी कैन फाइंड विद लास्ट इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट इज द लेंथ, ये बड़ा यूजफुल है, बड़ा काम का है। लेंथ का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने str1 बनाया था तो मुझे पता करना है कि str1 की लेंथ कितनी है, दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, सो str1 डॉट लेंथ लिख देंगे, इज इट ओके? सपोज आई वांट टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग, मैंने एक लाइन लिखा उसमें से एक वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है, सो रिप्लेस फंक्शन लगा सकते हैं str1 डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है और उसके जगह पे नया क्या देना है, ठीक है, सो आई हैव टू गिव द ओल्ड कैरेक्टर एंड देन आई हैव टू गिव द न्यू कैरेक्टर, दैट सो व्हाट विल हैपन, दिस ओल्ड कैरेक्टर विल बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू कैरेक्टर। नाउ देयर इज अ सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है, सपोज आई हैव गिवन अ स्ट्रिंग एप्पल एंड नाउ इसमें से हमें ये एक सब स्ट्रिंग बनाना है app नाम का, ये वाला ये निकालना है इसमें से, so what I need to do, so suppose this is str1 में है, so what I have to do is I have to write str1 dot substring substring, substring के अंदर
अब मुझे ये बताना है कि किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक। ओके, सपोज ये मेरा 0 इंडेक्स से लेकर 2 तक है। सो 0 कॉमा एंड इंडेक्स कितना है 2, तो 0,2। सो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 इंक्लूड होगा, और ये तीनों मिलके ये 0 1 और 2 मिलके एक सब स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आंसर विल गेट APP। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Okay. Next is a trim. Trim function is used to remove the extra spaces. Suppose हमने एक एप्पल दिया था APPLE, और यहाँ पे बहुत सा स्पेस दे दिया है। This extra spaces are there. This can be after the text or this can be before the text. So if there is a extra space after the text or before the text, that extra spaces will be removed their trim function. So इसको लिखने का भी तरीका वही है। जिस स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना है तो उस स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, उस स्ट्रिंग का नाम डॉट trim, 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 bracket open, bracket close, semicolon. So automatically the spaces will be removed. Okay. Now come to the to upper. To upper का मतलब होता है, suppose I have written a text, suppose हमने text लिखा है small में, and I want to convert this text into capital TEXT, इसमें convert करना है। So मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, मुझे to upper function लगाना पड़ेगा, that is str1 dot to upper, और जिस स्ट्रिंग को बदलना होगा वो स्ट्रिंग का नाम। इज इट ओके? Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी इसको ना प्रोग्राम में हम लोग अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विल डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आल्सो। ओके, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी हम एरे भी पढ़ाएंगे तो दोनों का क्वेश्चन एक साथ ही करवा सकते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. ओके ओके, या आप कहोगे तो अभी हम एक क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को अभी इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि स्ट्रिंग का हम एरे के साथ में यूज करवाएंगे। ठीक है, सो नॉर्मली आप लोग तो स्ट्रिंग का कर लोगे, तो एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज होता है, नॉर्मल वेरिएबल में यूज करना काफी इजी है। तो अभी हम लोग एरे पढ़ेंगे, एरे और स्ट्रिंग दोनों का एक साथ यूज हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो स्ट्रिंग का एक एरे बनाएंगे, उसी एरे के अंदर में हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अरेंजिंग करना सीख जाएंगे, आज ही करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नाउ लेट्स सी द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था कॉन्कैट फंक्शन, देखा यहाँ पे देखो, ये कहाँ गया, ये कॉन्कैट फंक्शन थर्ड वाला दिख रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए इसी का एक एग्जांपल देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना। सपोज in your program it has been asked to enter your first number, then it is asking to enter your last number, and now the program should display your full name. Okay, your full name. Okay, so तो प्रोग्राम में क्या करना है, इसमें आपका फर्स्ट नेम जो आपने एंटर किया और जो आपने लास्ट नेम एंटर किया, दोनों को ज्वाइन करके आपका फुल नेम डिस्प्ले करना है। एंड फॉर दिस वी नीड टू कॉन्कैट द स्ट्रिंग। ओके, सो कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन जब हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में प्लस साइन यूज करते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, इन केस ऑफ द अर्थमेटिक दिस प्लस साइन विल बी इज कॉल्ड एडिशन ऑपरेटर, ADDI, एडिशन ऑपरेटर। लेकिन जब हम ये कब होता है, ये आपका अर्थमेटिक के केसेस में, ओके, नंबर्स के केसेस में, और वी कैन से द नंबर्स के केसेस में, जब आपकी वैल्यू नंबर होगी तो प्लस साइन विल बी यूज फॉर एडिशन। बट इन केस ऑफ द स्ट्रिंग, the same plus sign will be used for concatenation, CONCATENATION, concatenation के लिए काम करेंगे। तो what is concatenation is, concatenation is used to join two or more string together. Okay, so suppose there is a variable first name, okay, वो string type का है और first name में नाम स्टोर किया है आशीष। Now there is a second variable that is last name में स्टोर किया पाल। Okay, now I have to print both the first name and last name together. Okay, so system.out.println फर्स्ट नेम, देन एक बीच में स्पेस दिया, देन लास्ट में आपका लास्ट नेम दिया। और ये नॉर्मली हम लोग जितने बार हम लोग system.out.println हमने हमेशा आपको ऐसे प्लस साइन करके, तो प्लस साइन हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस प्लस साइन इज, अ प्लस साइन इज यूज्ड टू join two strings together, that is concatenation, that is concatenating two strings
string. Is it okay? Hello? Yes, sir. Okay. Now the same thing, now if you don't want to concatenate with the operator, the same thing you can do with the function. And to use this, to perform the same thing with the function, we need to use the concat function. अब देखिए, जैसे concat फंक्शन यूज करेंगे उसी तरह से बाकी सब फंक्शन भी यूज करते हैं. हर फंक्शन का अपना अपना सिंटेक्स होता है. किसी में आर्गुमेंट देने की जरूरत पड़ती है, किसी में आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे concat है उसमें आर्गुमेंट देने की जरूरत पड़ेगी. जैसे लेंथ फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हर फंक्शन का अपनी अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज है, और उस फंक्शनैलिटीज के अनुसार कुछ हमें देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता है. किसी में 2 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, किसी में एक ही आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, किसी में स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल देने पड़ेंगे, किसी में नंबर टाइप के वेरिएबल देने पड़ेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर सिंटैक्स वी नीड टू प्रोवाइड a particular argument to the variable, to the function. Is it okay? So suppose if I have to use this concat function, in a concat function I need to give two strings. Okay, I need to give two strings. जैसे हमने यहाँ पे आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, क्या दिखाया था? Suppose I have to join string. Okay, suppose I have to join str1 को str2 के साथ ज्वाइन करना है. So str1 डॉट concat concat str2 लिखते हैं. ठीक है, एक तो ये तरीका. तो यहाँ पे देखिए, so this is str1, that is your first name, dot concat, आपका फंक्शन का नाम आ गया concat, और ये str2 हो गया. So this is first string str1 and this is our last string, this is the second string str2. और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कैसे किया है? इन दोनों को डॉट कॉन्कैट के थ्रू. इज इट ओके? डॉट कॉन्कैट के थ्रू आपका ये ज्वाइन हो गया. अरे सो आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट वाले केस में? इस केस में आउटपुट क्या आएगा? आई विल गेट आशीष पाल. सेकंड केस में भी क्या आएगा? आई विल गेट आंसर आशीष पाल. आई होप इट इज क्लियर. यस सर. ओके, चलिए एक काम करते हैं. एक छोटा सा हम लोग ना एक क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में एक काम करेंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आपको करके दिखा देते हैं, फिर आप इसको करते रहना. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल, देन हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे. ओके, सो सपोज हमने एक नोटपैड खोल लिया, या नोटपैड या नेटबीन्स ही कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स ओपन द नेटबीन्स. ओके, सो yesterday we have created this project. सो इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक नया फाइल बना लेते हैं आज. ओके, सो इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक नया फाइल बनाते हैं, और नया फाइल हमें जावा के अंदर जाना है, जावा क्लास बनाना है. ओके, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डेमो करते हैं, string स्ट्रिंग डेमो. ओके, और यहाँ पे हम करते हैं फिनिश. ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग डेमो बन गया. ठीक है, और स्ट्रिंग डेमो बनने के बाद स्ट्रिंग डेमो बनने के बाद मुझे क्या करना है? इसके अंदर में पब्लिक public पब्लिक static पब्लिक स्टैटिक void void main void main, और यहाँ लिखना है स्ट्रिंग स्ट्रिंग args. ये हमने ऐसे करना है, और ये हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रिंग बनाते हैं, string स्ट्रिंग, और मान लो s1 बना दिया, स्ट्रिंग s1 इसका स्टोर, और हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा computer कंप्यूटर. ओके, और दूसरा स्ट्रिंग बना है string स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, मैंने लिखा world वर्ल्ड. ओके, और यहाँ भी हमने ऐसे कर दिया. अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे इन दोनों का लेंथ पता करना है. ठीक है, इन दोनों का. सो कुछ फंक्शंस हम लोग को जा रहे हैं, अभी दोनों को कंपेयर भी करेंगे और ये भी करेंगे. ठीक है, जो अभी फंक्शन पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सपोज आई नीड टू, अब देखो ध्यान से. सो पहले हम लोग लिखते हैं कि सिस्टम system डॉट out
डॉट print प्रिंट ln और अगर आप एक एक करके करना चाहते हो एक एक करके कर सकते हो, जैसे सपोज s1 डॉट डॉट लेंथ। ठीक है। सो अभी देखो जैसे मैंने फंक्शन बताया था ना, जैसे यहाँ पे नेटबीन्स में यूज करोगे, जैसे ही आपने डॉट लगाया, डॉट क्या करता है, डॉट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेटर दैट एक्सेस द रिलेटेड फंक्शंस और रिलेटेड मेथड ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो S1 क्या है, S1 एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप है, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी मेथड होंगे दैट विल बी विजिबल हियर। ओके, सो स्ट्रिंग डॉट मुझे लेंथ लगाना है। ठीक है, सो स्ट्रिंग डॉट LENGTH लेंथ फंक्शन हमने लगा दिया। ओके, स्ट्रिंग डॉट S1 डॉट लेंथ। सो व्हाट विल, ओके, और यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, तो आपको मैसेज से पता चलेगा क्या क्या हमने देना है। यहाँ पे हमने देना है कि सपोज मैंने एक फंक्शन यहाँ पे दे दिया लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ S1। ओके, मैं ऐसे एक मैसेज दे देता हूँ और लेंथ ऑफ S1 ये दोनों को जोड़ दिया। और ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज हुआ। ओके, अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया एक मैसेज और इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए शिफ्ट के साथ F6। अगर ये रन ना करे तो आप इसमें रन में जाइएगा। ठीक है, तो ये मेन प्रोजेक्ट आपका अभी नन है, इसको ऐसे करिए, गो टू द मेन, यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कस्टम करके, कल जैसे बताया था। ठीक है और यहाँ पे रन में जाके ये कल वाला पैटर्न 1 किया था, पैटर्न 1 की जगह पे आप, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग डेमो नहीं आ रहा, एक मिनट, मे बी इसकी वजह से प्रॉब्लम। सो यू कैन सी हियर, आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, हेलो, Yes, sir. व्हाट द आउटपुट यू आर गेटिंग लेंथ ऑफ S1 Yes. 8। Okay, so this is the output we are getting. Now, similarly, we can perform the different function also. Suppose now I want to display, or now I want to use the concat function. Okay, so can concat use करने के लिए भी आप वैसे ही कर सकते हो, system dot, या देखो ध्यान से, एक हमें एक वेरिएबल बनाते हैं string s3 is equals to S1 जो था डॉट CONCAT कॉन्केट, और कौन सा S2। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या किया है, एक थर्ड वेरिएबल बनाया है S3, और S3 के अंदर मैंने क्या किया है, दोनों को ज्वाइन करके डिस्प्ले किया है। ओके, सो अब आप ऐसे भी इसको तो सिस्टम डॉट आउट डॉट मैंने लिखा थर्ड स्ट्रिंग THIRD थर्ड STRING स्ट्रिंग इज, थर्ड स्ट्रिंग इज S3। ठीक है, समझ में आ रहा है, योर थर्ड स्ट्रिंग इज कंप्यूटर वर्ड, आ रहा है यहाँ पे। Yes, sir. ओके, आई होप इट इज Yes, क्लियर। sir. ओके, सो सिमिलरली आपको सपोज हमें फर्स्ट वाले को, मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख के, और मैं आपको सिंपली इसको मैसेज ना लिख के डायरेक्टली हम आपको ये दिखाते हैं। सो अभी हम लोग यूज करेंगे टू लोअर केस। ओके, सो टू लोअर क्या होता है, जैसे हमने S1 जो लिखा है अपर केस में लिखा है, मुझे लोअर में चेंज करना है। ठीक है, सो मैं लिखूंगा S1 डॉट टू लोअर। ठीक है, टू लोअर केस। और मैं टू लोअर केस ऐसे डिस्प्ले किया और रन किया इसको। सो जस्ट मिनट, तो आपका ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। देखो, नाउ द कंप्यूटर इज कमिंग इन स्मॉल लेटर्स, आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. सो दिस वे यू कैन अप्लाई द डिफरेंट फंक्शन। Yes. ये फंक्शन आप उससे घर में प्रैक्टिस करिएगा। आई विल सेंड यू दिस, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई विल शो इट, और इफ यू आस्क मी तो आई विल सेंड यू आल्सो। ये जो फंक्शन है, ये इन फंक्शन का आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आएगा यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। इज इट ओके? Yes, sir. ओके ओके, तो आगे बढ़े। Yes, sir. नाउ next is we will start the array. So what is actually the array is? Array is a, अगर हम array को simple way पे पढ़े तो array is a collection of, it is a COLLECTION, collection of
of values of same data type, SAME, same data type. ठीक है, इसको शॉर्ट में बोले तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ values of same data type. So array in Java is like a group of like type variable. Like type variable means the variables having the same data types. Okay, and they all will be stored at a one location with a one name. Okay, so array are used to store the multiple values. Array are used to store the multiple values in a single variable, एक ही वेरिएबल में, instead of declaring the separate variable. Suppose मुझे रोल नंबर 5 बच्चों का रोल नंबर स्टोर करना पड़ता, तो मुझे फॉर एग्जांपल R1 किया, R1 इक्वल्स टू 1, R2 इक्वल्स टू 2, R3 इक्वल्स टू 3, देन R4 इक्वल्स टू 4 एंड R5 इक्वल्स टू मान लो 10 है, ऐसे करके ये 5 बच्चों का रोल नंबर स्टोर करना है। तो एक तो तरीका ये है, मैंने 5 वेरिएबल बनाया, 5 वेरिएबल में स्टोर करें, तो बेटर इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द एरे। मैंने एक एरे बनाया और इसके अंदर में पूरा 1 2 3 4 और 10 सबको एक साथ दे दिया। सो नाउ आई डू नॉट नीड टू create another separate array for each roll number. Is it okay? So now if I have to declare any array, so array should be declared with a square bracket. So this square bracket, okay, so a square bracket should be used to declare the array. So मैंने R यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, this square bracket denotes this R is a array type. ठीक है, so this is जैसा भी हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, स्ट्रिंग एक मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होता है और सबकी इंडेक्सिंग होती है। array is like that only. String is itself a collection of character type variables. So string can be represented as an array also. Okay, वो आगे देखेंगे हम लोग। Suppose I have created an array. So array will be stored in the memory, and how much memory is allocated to the array that depend upon the data type of the value. Okay, अगर हम string की बात करें तो how much memory will be allocated to a string that depends upon the length of the string. सपोज स्ट्रिंग में मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है जिसकी लेंथ है 5। सो कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो वन कैरेक्टर, हाउ मच बाइट इज एलोकेटेड टू वन कैरेक्टर, आपको याद होगा डाटा टाइप में 1 बाइट इज एलोकेटेड टू ए वन कैरेक्टर। ओके, सो इफ देयर इज a suppose there is a string of 5 characters, okay, so 5 बाइट will be allocated। लेकिन एरे में अगर मुझे 5 नंबर स्टोर करना है और इंटीजर टाइप के है एंड इंटीजर को 4 बाइट एलोकेट होता है मान लो, तो अगर मेरे पास 4 और 5 वैल्यू है, 5 4 20 बाइट्स विल बी एलोकेटेड। तो सपोज, सो हियर यू कैन सी array will be this is the collection of array, that is a collection of multiple values, and each value has their own index. This is index 0, index 1 2 3 4 5 6 7. So first is the first starting index and last index will be the last index. Okay, so तो आगे देखते हैं। सपोज हम वेरिएबल जब बनाते हैं तो वेरिएबल में क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सिंटेक्स और सब कुछ यहीं पे बता रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। सो दैट वी राइट इन केस ऑफ डेटा टाइप, बट इन केस ऑफ द एरे मुझे सब कुछ वैसे ही लिखना है, बट मुझे डेटा टाइप यहाँ पे, सो हम कह सकते हैं कि सिंटेक्स ऑफ एरे इज, पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप। जब डेटा टाइप बनाओगे तो एक नॉर्मल वेरिएबल के नहीं बना दो, किसके लिए बना दो, एरे के लिए। सो हियर आई हैव टू पुट ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो डेटा टाइप विद ए स्क्वायर ब्रैकेट, then you have to give the variable name, that is array name. Okay, you can give the array, sorry, you can give the array name. Okay, एक तो तरीका ये है कि आप इनिशियलाइजेशन करते हो और बाद में इसी एरे को बाद में आप इसकी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, सो या तो दोनों एक लाइन में लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म मतलब अगर 2 लाइन लिखने का मन करे तो आप 2 लाइन में लिख सकते हो। जैसे सपोज डबल इज ए डेटा टाइप, डबल टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं ए, सो डबल टाइप ये एरे बना रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट ए उसका नाम,
देन बाद में इसकी वैल्यू दे रहे हैं a इक्वल्स टू न्यू डबल n क्या है, लेंथ ऑफ, कितना लेंथ दे सकते हैं वो दे सकते हैं। तो सपोज अभी इसको आप इग्नोर मारो, ये वाला लाइन को आप इग्नोर करो, इसको हम, क्योंकि हमें बार बार वैल्यू देना है तो ये क्यों लिखा है ये भी बताते हैं आपको। पहले आप देखो ये फर्स्ट टू लाइन्स को, ये दो लाइन को आपस में एक साथ शॉर्ट में करना है तो यू कैन डू दिस शॉर्ट मेथड आल्सो, लाइक डबल ए डबल स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल्स टू न्यू डबल एन। ये देखो ध्यान से देखो, दोनों लाइन को कंबाइन हो गया। तो नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज आई हैव यहाँ पे इसी जगह पे DOUBLE डबल स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे लिखा है डबल, और मान लो यहाँ पे 5 दिया है, साइज दिया 5। ओके, सो व्हाट विल हैपन, एक आपका मेमोरी के अंदर में 5 साइज का 1 2 3 4 5। सो अगर साइज 5 है तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स 4 होगा। सो 0 देन 0 1 2 3 4। So these are the different values for the different index for each this array locations. Okay, so ये array का नाम क्या होगा, array का नाम होगा A. Okay, so suppose इसकी allocation क्या होगी, array index 0 ऐसे। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, array index 1। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे array index 3। इसको लास्ट वाले को array that is A index 4। Are you getting the point? Yes, sir. ओके, एक तो ये तरीका है, ठीक है, मतलब आपने ये क्रिएट भी किया और इनिशियलाइज भी किया। दूसरा एक तरीका है, एक और तरीका, यहाँ पे क्या है, वैल्यू हम यूजर से दे सकते हैं। मतलब जब हमें यूजर डिफाइन, हमारे पास वैल्यू पहले से नहीं है और यूजर डिफाइन करेगा वैल्यू, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। यूजर से मान लो यूजर से 5 वैल्यू लेनी है, तो यूजर से 5 वैल्यू तो 5 बार पूछना पड़ेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, तो आपको 5 लाइन लिखना पड़ेगा। एंड यू डोंट वांट टू राइट द 5 लाइंस, देन यू कैन यूज द लूप। इसीलिए ये वाला जो लाइन है, ये जो 2 लाइन है, ये लूप है। इसको अभी प्रोग्राम में कैसे करते हैं ये भी देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, फॉर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक, जहां तक आपका, जब भी जो आपका जो एरे बना है, एरे के लेंथ से कम तक, ठीक है, दैट इज n की वैल्यू यदि 5 है तो 4 तक होगा, ठीक है, और n प्लस प्लस किया, और हमने बताया था कि एरे की वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल a इज माय एरे, और एरे के इंडेक्स 1 पे वैल्यू देना है और 5 देना है, तो a 1 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे देंगे, तो दैट मींस 5 इज स्टोर्ड, 5 विल बी स्टोर्ड हियर। सो इफ आई राइट a इंडेक्स 3 इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या है, एरे जो a है उसका जो इंडेक्स 3 है, दैट इज इंडेक्स 3 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 10। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, एक चीज और देखें, अगर आप चाहते हो कि हम पहले से 5 रोल नंबर पहले से इनिशियलाइज कर दें, तो एक तरीका ये भी है कि आप जिस जैसे रोल नंबर स्टोर करना है तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, और रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल बनाया r, और पहले से रोल नंबर पहले से डिफाइन है, मान लो रोल नंबर 10 है, रोल नंबर 21 है, रोल नंबर 32 है, रोल नंबर 25 है, और रोल नंबर 28 है। ऐसे रोल नंबर्स हैं और ये पहले से आपको पता है। तो नाउ वी कैन गिव, जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू पहले से डिफाइन करते थे, यहाँ पे अगर पहले से आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो यू कैन गिव दिस मेथड आल्सो। So this is predefined values. If I have to create an array with a predefined values, I can use this method. If I want to create an array where the value is not defined, value will be defined later, then you can apply this one. Is it okay? Yes, sir. Okay. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आप कॉपी में थोड़ा सा सिंटेक्स आप नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आप अप्लाई करोगे। ठीक, आगे बढ़े हम। Yes. ओके ओके, नाउ लेट्स सी दिस। ठीक है, अब सिंपल सा एक तरीका है, आप देखो ध्यान से। अगर आप पिछले स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पे भी एक न्यू कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये न्यू लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट हो रहा है, एरे का एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द एरे ऑब्जेक्ट। नाउ यही चीज मैंने यहाँ पे 2 वे में लिखा है। नाउ वी कैन समराइज, हाउ वी कैन समराइज हियर। सो टू कंस्ट्रक्ट एन एरे, आइदर वी कैन यूज द न्यू, जिस टाइप का लिखना होगा वो टाइप और उसका लेंथ देना होगा। तो आप देखो प्रीवियस एग्जांपल में, सो आपने क्या लिखा, न्यू, ठीक है, यही यूज किया मैंने। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू देन डबल, दैट इज अ टाइप, और एन इसकी साइज। इज इट ओके?
Yes, sir. Yes. So the first way is I have to give the new then data type और उसका लेंथ, ये याद रखना है। दूसरा क्या है, एक्सेस करने के लिए, मतलब हमें कोई वैल्यू को एक्सेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये एरे बनाया था, एरे पे एरे की इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है, बस हम प्रिंट के अंदर में ये लिख देंगे एरे इंडेक्स 3। सो व्हाट आई विल गेट द आंसर 10। यहाँ से वैल्यू को इंसर्ट किया था, यहाँ से वैल्यू को एक्सेस करते हैं। आर यू गेटिंग? Yes. Yes. ओके, अब देखिए ध्यान से, अब यही चीज यहाँ पे है, एरे रेफरेंस दिया, दैट इज एरे का जो भी आपने एरे बनाया है और उसका इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे, इससे वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दूसरा सिंटेक्स है एक्सेस करने के लिए, ये क्रिएट करने के लिए। सपोज एक वैल्यूज नाम का एक एरे बनाया है, ठीक है, और जिसमें साइज दिया 10 और ये इसका डाटा टाइप है डबल, तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू इक्वल्स टू न्यू डबल 10। ओके, नाउ अब एक और एरे बनाया है मोर वैल्यूज, और इसके अंदर में पहले से वैल्यूज दिया गया है, तो डबल मोर वैल्यूज इक्वल्स टू, इसमें दिया 1 2 3 4 5 वैल्यूज पहले दिया हुआ है। So 32, 54, 67.5, 29 and 35. Okay. So these are the initial values given. Okay. These are the initial values. ये पहले से initial values दे दिया गया है. Okay. और यहाँ पे values नहीं दिया गया है. ठीक. How we can access the value? पहली बात तो ये जो values बना हुआ है, तो values के अंदर में पहले से कोई value है नहीं, सिर्फ size दिया गया है ना? So एक तो तरीका है कि आप सेकेंड वाले वेरिएबल से, सेकेंड वाले एरे से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो सेकेंड वाले एरे का नाम क्या है, मोर वैल्यूज, VLUES, मोर वैल्यूज। हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और जिस इंडेक्स की वैल्यू हमें पता करना है उस इंडेक्स की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंडेक्स 3 की वैल्यू निकालनी है, इंडेक्स 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इंडेक्स 2। सो व्हाट इज द व्हाट द आउटपुट आई विल गेट, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका। सपोज हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर में मैंने ये लिख दिया है, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 54. इट विल बी 54. ओके, जानवी व्हाट इज द आंसर। So 67.5 because index 2. हाँ, it will be 67.5 because index will be, this is 0, this is 1, 2, 3 and 4. So at the index 2, the answer is 67.5. Are you getting the point? Yes, sir. Okay. Now, if I write, ध्यान से देखना, if I write values, if I write VLUES values, square bracket 0 is equals to 10, values square bracket 1 is equals to 15, and then again I am writing values square bracket 2 is equals to 20.5. Okay, and now I am writing system dot out dot print और print के अंदर में values और square bracket 1. So what is the answer I will get? 15. तो इसका मतलब क्या है, values मैंने पहले से बनाया नहीं है। So now what I am doing, I am creating the values. ये values जो साइज 10 था, ये साइज 10 ऐसे बना हुआ है, तो 1 पे 0 इंडेक्स पे मैं 10 दिया हूँ। ओके, सेकंड इंडेक्स पे मैंने 15 दिया है, थर्ड इंडेक्स पे 20.5 दिया है, एंड आई एम एक्सेसिंग दिस वन, सो आई विल गेट द 15. इज इट ओके? Yes, sir. Okay. Yes. So this is the way to access the values from the array. Okay. So इसके आगे हम लोग कल देखेंगे कि हम लोग एरे को लूप के, तो कल टोटली प्रैक्टिकल होगा एरे का। ओके, उसमें थोड़ा सा और थ्योरेटिकल होगा, बट टुडे टुमारो वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ऑफ दिस एरे, जहाँ पे हम लूप को भी यूज करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे, स्ट्रिंग के एरे को शॉर्टिंग भी करेंगे, ये सब चीजें कर देंगे। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो नाउ आई विल एंड अप द क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir.